Hello everyone. So I'm here to present the new Vedic Maths video, which is part 5. I'm sure all of you have seen the first 4 part of Vedic Maths, in which we have already discussed the squares of all the numbers from 75 to 100, 100 to 125, and we have learned the multiplication as well. Now in this video, we are going to find out the square of all those numbers which are nearer to other bases like 100, 200, plus minus 25 of 100, plus minus 25 of 200, and so on. And in this video, I'm trying to cover the squares as well as multiplication also. Now, this is a very useful video, guys. Watch the video till the end and do not forget to like and subscribe. Definitely, if you get something from it. If you're not on my Telegram group, you can join it, location underscore unacademy. So let's begin. So in this part, let's say if you want to find the square of all those numbers which are in the range of, let's say, 200 to 225 near to other bases. We have already learned the square of all those numbers from 100 to 125. Let's say we want to find the square of 207. So 207 is how much more than 200? 207 is 7 more than 100. So what we will do, we will add 7 both the side. 7 add kar diya. Now 7 into 7 is 49. 7 into 7 is 49. Now add this part. 207 plus 7, that is 214. But because the base has become 200, which is double of 100, so after adding this part, you have to multiply with 2 also. Base कितना हो गया? बेस हो गया 200. किसके पास है? 200 के पास है. तो अगर आप बेस 200 ले रहे हो जो कि 100 का डबल है, तो क्या करना है आपको? एक स्टेप ऐड करने के बाद डबल जरूर करना. तो 214 का डबल जरूर करना. आंसर आएगा 42849. खत्म. तो if somebody asks you 207 square, कुछ नहीं करना है. 7 square is 49. 207 plus 7 is 214. But because 200 है तो डबल करना. अगर 300 होगा तो ट्रिपल, 400 होगा तो 4 times and so on. राइट हैंड साइड पे ऑब्वियसली वी नो कि हमें 2 ही डिजिट लिखनी होती है, ना 3 ना 1. ये हम सब पहले वाले 4 पार्ट में कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं पहले वो जरूर देखना, फिर इस पे आना. सो लेट्स से वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 203. नाउ 203 इज 3 मोर देन 200. तो वी विल राइट इट 3 into 3 is 9, बट क्योंकि हमें 2 डिजिट लिखना है तो हम 09 लिखते हैं. 203 plus 3 is 206, बट आप 206 नहीं लिखोगे, आप डबल करके लिखोगे क्योंकि बेस इज अगेन 200. तो आंसर आएगा 412. 41209 इज द आंसर. सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट आएंगे तो क्या होगा? वी विल कैरी फॉरवर्ड. लेट्स से वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 212. 212 is how much more than 200? That is 12 more than 200. So I'll add 12 both the side. 212 को मल्टीप्लाई करना है. 12 का स्क्वायर होता है 144. मैंने बोला था आप याद कर लेना, नहीं याद किया है तो यहाँ से देख लेना, लेकिन अब तक याद हो जाने चाहिए थे. ऐड करो पहले. 212 में 12 ऐड करो तो 224 हो जाएगा, लेकिन 224 नहीं लिखना, उसका डबल लिखना है, तो हम लिखेंगे 448. लेकिन जैसे मैंने बोला कि जो थर्ड डिजिट है वो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी आगे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको 2 ही डिजिट लिखनी होती हैं. तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 44944. एक सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो. 212 का स्क्वायर अगर कोई बोलेगा तो 12 का स्क्वायर 144. 212 में 12 ऐड करना 224. 224 का डबल कर देना 448. 1 को आगे भेज देना. आंसर आएगा 44944. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स से इफ आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 216. कैन यू डू इट ओरली नाउ? 16 स्क्वायर 256. 216 प्लस 16 232. 232 का डबल 464. 2 को आगे भेजो 46656. आंसर आ गया. ऐसे चाहिए आंसर. So once you practice it, I think you can do it very fast, even in the mind. I take certain other example of nearer to other bases. Let's say I want to find the square of 308 now. 308 is nearer to 300 base. Base has become 300, which is triple of 100. So if the base has become triple, after adding you have to just multiply with 3. So 308 square के लिए I need to just multiply 308 into 308. This is how much more than 300? 8 more than 300. I'll add 8 both the side. 8 into 8 is 64. But राइट हैंड साइड पे 2 ही डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. 308 प्लस 8 इज 316. बट आप 316 नहीं लिखोगे इस बार आप उसका ट्रिपल लिखोगे क्योंकि बेस ट्रिपल हो गया है. तो आंसर आएगा 948. 94864. राइट हैंड साइड पे 2 ही डिजिट लिखनी है, 2 ही है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. 1 आएगी तो कैरी फॉरवर्ड, 1 आएगी तो 0 लगाना, 3 आएगी तो कैरी फॉरवर्ड. लेट्स से वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 313. So 313 is 13 more than 300. 13 square 169. 313 plus 13 326. बट आप 326 नहीं लिखोगे, उसका ट्रिपल लिखोगे. तो अगर आप नॉर्मली देख पाते हो 978 है,
25 26 इंटू 3 कर सकते हो, 60 प्लस 18 78 978, बट 1 को आगे भेजना पड़ेगा, आंसर आएगा 97969। 300 के पास भी हो गया, 400 500 you can take it any number. I take some random number as well to show it to you. Let's say you want to find the square of 415. So 415 is 15 more than 400. Base has become 400, तो 4 times करना पड़ेगा। 15 का स्क्वायर is 225. 415 plus 15 is 430, but I'll not write 430, I'll write 4 times of that. 1600 plus 120 1720. 2 को आगे भेज देंगे, आंसर आएगा 172225। जितना भी थर्ड डिजिट का होता है उसको कैरी फॉरवर्ड करना। 20 में 2 ऐड करोगे 22 हो जाएगा और 25 तो आने आना। लेट्स से आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 509 और कुछ भी 511। अब मैं तो देखो ऐसे लिखूंगा, 11 का स्क्वायर इज 121। 511 में जब आप 11 ऐड करोगे तो 522 आएगा। 522 को आप 5 टाइम्स कर सकते हो बड़े आराम से। 522 का 2500 2600 2610 110 प्लस 2500 2610। 1 को आगे भेज देना, आंसर आ जाएगा 261121। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। अगर आप इतनी तेज यहाँ पे ओरली विद द पेन एटलीस्ट निकाल पा रहे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप विदाउट पेन भी निकाल सकते हो ओरली इन द माइंड। तो सारे बेसेस 500 600 कितना भी नंबर होगा आप निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर जो बेस है वो नंबर जो है वो 100 से या 200 से छोटा है, तो हम जो कर रहे हैं वो प्लस माइनस 25 की रेंज में कर रहे हैं। ये हमने प्लस 25 देखा, माइनस 25 देखते हैं। लेट्स आई वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 196। अब सोच के देखो 196 तो बड़ा नंबर लग रहा है देखने में, लेकिन अगेन ये बेस जो है वो 200 के आसपास है, 200 के पास है ना। कितना छोटा है? 200 से 4 कम है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे इस बार 4। जितना बेस से छोटा है उतना आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 4 इंटू 4 is 16। 196 में से 4 माइनस करोगे आएगा 192, बट आप 192 नहीं लिखोगे क्योंकि बेस आपका 200 है, तो आपको डबल लिखना पड़ेगा 38,384। आंसर आ जाएगा 38416। 196 का स्क्वायर भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राइट हैंड साइड पे 2 ही डिजिट लिखना, बस याद रखना। लेट्स से आपको 188 का स्क्वायर निकालना है। 188 के स्क्वायर में भी 200 के पास है, तो आप बोलोगे 188 कितना छोटा है 200 से? 12 छोटा है। सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम बोथ द साइड। 12 का स्क्वायर इज 144। 188 माइनस 12 होता है 176, बट यू विल नॉट राइट 176, यू विल राइट डबल ऑफ दैट। 17 का डबल होता है 34, मतलब 340 प्लस 12 352। ऐसे करा करो, ऐसे नहीं 2 इंटू 6 12, ये ऐसे कर लिखना चाहिए। 17 का डबल 34 मतलब 340, 6 का डबल 12, 340 प्लस 12 352। 1 को आगे भेज देना, आंसर आएगा 35344। 200 के पास, 300 के पास, 400 के पास, किसी भी बेस के पास आप निकाल सकते हो। लेट्स से यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 287। कितना भी बड़ा नंबर ले लेना। बेस क्या है? 300। बेस दिख रहा है 300 के पास है, ट्रिपल करना पड़ेगा। 287 कितना छोटा है 300 से? 13 छोटा है, माइनस कर दो 13। 13 का स्क्वायर 169। 287 में से 13 माइनस करोगे आएगा 274, बट आप 274 नहीं लिखोगे, आपको लिखना है इसका ट्रिपल। कितना आ जाएगा? 600 प्लस 210 810 810 प्लस 12 822। या 300 का ट्रिपल करके उसमें से 78 माइनस कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन आई वांट यू टू ब्रेक अप लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूँ। 600 प्लस 21 मतलब 210, 810 प्लस 12 822। 1 को आगे भेज देना, आंसर आ जाएगा 82369। 287 का स्क्वायर भी यू कैन गेट इट। लेट्स से यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3। मैं तो यार देखो कुछ भी ले लूंगा, अब तुम्हारे ऊपर है कितना प्रैक्टिस करते हो। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर लेने चाह रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अदरवाइज यू कैन गो टिल एनी रेंज प्लस माइनस 25 अगर आपके कैलकुलेशन ठीक ठाक है। लेट्स से 381 का स्क्वायर निकालना है। कितना छोटा है बेस 400 से? 19 छोटा है, तो आई राइट 381 विच इज 19 लेस देन 400। मल्टीप्लाई करेंगे, 19 का स्क्वायर 361 होता है। 381 में से 19 माइनस करोगे तो 362 आएगा। ये भी सिखाया था मैंने। यू नीड नॉट टू सब्ट्रैक्ट 19, यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट 20 एंड ऐड 1। तो 381 minus 20 will be 361 plus 1 362, but you will not write 362, you have to write it 4 times of that क्योंकि बेस 400 है। तो फिर से देखो कैसे सिखा रहे हैं। 1200 प्लस 240 1440 1448। ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। 3 कैरी फॉरवर्ड कर दो, 145161 आंसर आ जाएगा। अगेन जैसे मैंने बोला, कैलकुलेटर से अपने आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि सही बताया जा रहा है आपको या नहीं। क्लियर है? 300 400 500 कोई भी एग्जाम्पल लेना, अपने एंड पे खूब सारे एग्जाम्पल लेना और कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। तो ये स्क्वायर की बात हो गई।
सिमिलरली ये नंबर को मल्टीप्लाई अगर करना है तो कैसे करते हैं वो भी सिखा देता हूँ. लेट्स यू वांट टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स व्हिच आर नियरर टू अदर बेसिस बट नॉट 100, प्लस माइनस 25 की रेंज में अगर नंबर है. जैसे यू वांट टू मल्टीप्लाई 207 इंटू 212. इन दोनों को मल्टीप्लाई करना. आप सोच के देखो, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन में टाइम लगा दोगे, लेकिन अब यू कैन डू इट ओरली. 200 बेस है, कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है, ये 12 ज़्यादा है. 7 इंटू 12 होता है 84. 84 आ गया. 207 प्लस 12 करोगे 219 आएगा. लेकिन आपको 219 नहीं लिखना है, उसका डबल लिखना है, क्योंकि बेस आपने 200 लिया है. तो आंसर आएगा 43884. सोच के देखो, ये मल्टीप्लीकेशन आप इतनी जल्दी कर सकते हो विदाउट इवन पेन, अगर आप माइंड में सोच पाते हो. फिलहाल के लिए आप लिख के कर लो. इनिशियली धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप ओरली भी कर सकते हो. टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स यू वांट टू मल्टीप्लाई 214 इंटू 219. कुछ भी ले लिया करो. राइट हैंड साइड पे दो ही डिजिट लिखना, ये याद रखना. दो ही डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. 3 आएंगी तो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 1 आएगी तो 0 लगा देंगे. तो दैट इज 14 मोर देन 200. दैट इज 19 मोर देन 200. 14 इंटू 19 ना करके आप 14 इंटू 20 माइनस 1 कर सकते हो. अगर आपको 14 इंटू 19 करना है तो आप 14 इंटू 20 कर लो, उसमें से 14 कम कर दो. तो 280 में से 14 कम कर दो, 266 आ जाएगा. या फिर आप 19 इंटू 10 190 प्लस 76 266 ऐसे भी लिख सकते हो. ऐड करोगे 214 प्लस 19. इसमें ना ऐड कोई भी कर लिया करो. इसमें ऐड करोगे तब भी 219 आएगा, इसमें ऐड करोगे तब भी 219 आएगा, इसको ऐड करोगे तब भी 233 आएगा, इसको ऐड करोगे तब भी 233 आएगा. उसका डबल लिख देना 466. बट राइट हैंड साइड पे क्योंकि आप दो ही डिजिट लिख सकते हो, तो इस थर्ड डिजिट को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा 46866. है बढ़िया मजेदार तरीका. तो ये सारे नंबर 200 300 का और एग्जाम्पल लेते हैं. 300 400 जितना भी बेस. लेट्स यू वांट टू मल्टीप्लाई टू नंबर 314 इंटू 307. तो बेस 300 है, प्लस 14 प्लस 7. 14 इंटू 7 इज 98. ये 98 आ गया. इसमें ऐड करोगे 321 आएगा, इसमें ऐड करोगे तब भी 321 आएगा. उसका ट्रिपल लिखना है क्योंकि बेस 300 है, तो 963 आ जाएगा. और राइट हैंड साइड पे क्योंकि दो ही डिजिट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर बेस 400 है, छोटा नंबर लेके दिखाता हूँ. 401 इंटू 403 करना है मान लो. जब सिंगल डिजिट आती है तो 0 लगाते हैं. ये प्लस 1 ज़्यादा है, ये प्लस 3 ज़्यादा है. 1 इंटू 3 होता है 3, बट आप 03 लिखोगे. इसमें ऐड करो तब भी 404 आएगा, इसमें ऐड करो तब भी 404 आएगा. उसका 4 टाइम्स लिख देना. 16 16 03 विल बी द आंसर. 161603 विल बी द आंसर. कुछ कैरी फॉरवर्ड या कुछ करने की जरूरत नहीं है. तो एक डिजिट तो 0 लगा देना, बाकी 3 डिजिट पे तो हम कैरी फॉरवर्ड कर ही देते हैं. मुझे 513 इंटू 521 करना है. मैं कितना भी बड़ा नंबर ले सकता हूँ. तो ये प्लस 13, ये प्लस 21. 13 इंटू 2 मतलब 260. 260 प्लस 13 273. या 21 210 प्लस 63 273. इसमें ऐड करोगे 534 आएगा. 534 का 5 टाइम्स करना है आपको. तो 2500 प्लस 150 2650 2670. अगर मेरी जैसी कैलकुलेशन सीख जाओगे जब मैं कर रहा हूँ, जो मैं ब्रेक करके आपको दिखा रहा हूँ, 2500 प्लस 150 2650 2650 प्लस 20 2670. 2 को आगे भेज देना. 267273 विल बी द आंसर. 267273 विल बी द आंसर. तो नंबर्स अगर किसी भी बेस के पास है, 100 के बेस के पास है, प्लस वाले कर सकते हो, मल्टीप्लाई माइनस वाले भी कर सकते हो. लेट्स से आई वांट टू मल्टीप्लाई टू नंबर 293 इंटू 286. सोच के देखो ये मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे नॉर्मली. लेकिन अब देखो जरा, बेस क्या है 300. कितना छोटा है 300 से? 7. ये कितना छोटा है? 14. 7 इंटू 14 98. 70 प्लस 28. इसमें से माइनस करो या इसमें से माइनस करो, 279 आएगा. लेकिन आप 200 मत ले लेना यहाँ पे. बेस 300 लेना, क्योंकि ये 300 के पास नंबर नहीं आते. तो 3 इंटू 3 करना, इंटू 2 नहीं. बेस 200 नहीं है, बेस 300 है. तो ये 7 छोटा है, ये 14 छोटा है. 7 इंटू 14 इज 98. इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 279 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तब भी 279 आएगा. उसका ट्रिपल करना है. आप 900 में से 63 माइनस करके आंसर लिख सकते हो. 837 आएगा. या फिर आप ब्रेक कर लो. 600 प्लस 210 810 810 प्लस 63 873. एंड दैट इज योर आंसर गाइस, 87398. इतना जल्दी आप नॉर्मल डेफिनेटली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो 3 इंटू 3 डिजिट का. अगर बेस 200 के पास है या 300 के पास है, मुझे करना है मल्टीप्लाई 192 विद 181. 200 बेस लिया है मैंने. कितना छोटा है? 8 छोटा है. ये कितना छोटा है? 19. 19 इंटू 8 इट्स 152. अगेन
8 इंटू 20 करके आप एक 8 कम कर सकते हो। 8 इंटू 20 होता है 160, 160 में से एक 8 कम कर दोगे 152 आ जाएगा। इसमें से 19 माइनस करो या इसमें से 8 माइनस करो, जो भी इजी लगता है कर लिया करो। इसमें से 19 माइनस ना करके आप 20 माइनस करके +1 भी कर सकते हो, तो 173 आ जाए। इसमें से 8 माइनस करोगे तब भी 173, उसका डबल लिखना क्योंकि बेस है 200 के पास, तो 170 का 3 का डबल हो गया 34, 346। बट बिकॉज राइट हैंड साइड पे मुझे 2 ही डिजिट लिखनी है, तो मेरा थर्ड डिजिट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। आंसर आएगा 3475। कोई सा भी बेस 500 के पास नंबर ले सकते हो आप। मुझे मल्टीप्लाई करना है 483 इंटू 476, कितना भी बड़ा नंबर गाइस। तो ये 17 कम है, ये 24 कम है, और मैं तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, ये नहीं मैं कोई नंबर याद करके लाया हूँ या मैं लिख रहा हूँ। आई टेक एनी नंबर। अगर आपकी कैलकुलेशन धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 17 इंटू 2 34, 340, 340 प्लस 68 408। ये मल्टीप्लाई मैं ओरली कर रहा हूँ क्योंकि मुझे टेबल्स याद हैं। अगर आपको टेबल्स याद होंगी तो आप भी ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपको साइड में 17 इंटू 24 नहीं करना पड़ेगा, नहीं आपको करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 17 इंटू 2 किया 34 मतलब 340, 17 इंटू 4 किया 68, 340 में 68 ऐड कर दिया, आ गया 408। इसमें से 17 माइनस कर दो, 16 माइनस करके एक और माइनस कर दो, 459 आ जाएगा। 459 का कर देना 5 2000, 2250, 2295, 4 कैरी फॉरवर्ड कर देना, आंसर आ जाएगा 229908। तो जितने सारे एग्जाम्पल मैंने इतनी देर में लिए हैं, आप खुद से एग्जाम्पल ले सकते हो और चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से कि आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो जैसे मैं रैंडम नंबर ले रहा हूँ, ऐसे ही आप +-25 वाले कोई भी नंबर जो बेस के पास हैं, 500 के पास, 600 के पास, आराम से प्लस वाले 25 माइनस वाले 25 करके देखो। खूब सारे नंबर, धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगी। और ये कैलकुलेशन बहुत काम आती है गाइस, ना सिर्फ परसेंटेज में, ना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, बल्कि परसेंटेज में भी। अगर कोई आपसे बोलेगा क्या बताओ 183% ऑफ 19.2 कितना है, तो आप सोच के देखो यार, मतलब नॉर्मल सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपसे वो मालूम है क्या पूछ रहा है? वो आपसे यही पूछ रहा है 183 और 192 का प्रोडक्ट पूछ रहा है। आप डेसिमल भूल जाओ अभी। तो ये 17 छोटा है, ये 8 छोटा है। 17 इंटू 8 136 होता है। इसमें से 8 माइनस करूंगा 175 आएगा, उसका डबल कर देना 350 आ गया। 1 कैरी फॉरवर्ड कर देना, ये आ गया आपका आंसर 35136। अब डेसिमल देखते हैं, एक डेसिमल यहाँ पर है और 2 डेसिमल डिवाइड बाय 100 है, तो 3 डेसिमल शिफ्ट हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा आपका 35.136। 19.2 का 183% निकाल चुके हो आप। 183% ऑफ 192, 19.2। एक डेसिमल यहाँ पे, 2 डेसिमल यहाँ पे, तो आंसर को 3 डेसिमल से शिफ्ट कर देना। तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में काम नहीं आएंगे, ये परसेंटेज में बहुत जगह काम आएंगे, ये SICI में बहुत जगह काम आएंगे। तो आप जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाओगे, काम दिखती हैं कैलकुलेशन। जिनका वैदिक मैथ्स अच्छा है उनको ये सब कैलकुलेशन दिखती हैं, नहीं तो आप नॉर्मल बैठ के मल्टीप्लाई कर रहे होगे। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वैदिक मैथ्स लगा भी लोगे और फिर नॉर्मल मेथड से चेक कर रहे होगे। तो ये कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आपने खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली होगी। आई विल नॉट रीचेक, मुझे पता है कि मेरा आंसर 35.136 आने वाला है। आई विल नॉट रीचेक। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो तभी आएगा जब यू विल टेक अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही करते हैं। आई थिंक काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने बहुत जल्दी ले लिए, तो आप इसको आराम आराम से स्लो मोड में देख सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो अपने एंड पे। मैं सेकंड वीडियो में आ रहा हूँ जिसमें हम उन नंबर के स्क्वायर सीखेंगे जो 25 से 50 और 50 से 75 की रेंज में। इंपॉर्टेंट वीडियो है वो वाली भी, ध्यान से देखो।